Hello friends, welcome back on my YouTube channel Saksham Gyan Unnati Kaksha. Friends, this is Deepak Saxena and today I am going to teach you the first chapter of your honeycomb book, 3 questions. तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरी वीडियो को देखिए। वीडियो पसंद आने के बाद ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। So student, this is your chapter 3 questions. The thought came to the certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do. The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. एक राजा के दिमाग में विचार आया कि वह कभी भी असफल नहीं होगा यदि उसको 3 बातों का पता लग जाए। और वो 3 बातें क्या थी कि किसी भी काम को शुरू करने का सही समय क्या होना चाहिए और किन लोगों की बात राजा को सुननी चाहिए और उस काम को करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होनी चाहिए। राजा ने इसलिए अपने पूरे राज्य में दूत भेजे और इन प्रश्नों का सही उत्तर देने वालों को बहुत सारा रुपया देने का वादा किया। कई बुद्धिमान राजा के पास आए, लेकिन उन सभी ने प्रश्नों का अलग अलग जवाब दिया। In reply to the first question, some said that king must prepare a timetable and then follow it strictly. Only in this way, they said, could he do everything at its proper time. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures and always do whatever seemed necessary at that time. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. पहले पर्सन के जवाब में कुछ ने कहा कि राजा को टाइम टेबल बनाना चाहिए और स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना चाहिए। उन्होंने कहा केवल इसी तरीके से राजा अपने सभी काम को सही समय पर कर सकता है। दूसरों ने कहा कि कुछ काम को करने के लिए सही समय का पहले से फैसला करना मुश्किल है। राजा को जो कुछ हो रहा है उसको ध्यान से देखते रहना चाहिए और मूर्खतापूर्ण खुशी से बचना चाहिए और हमेशा वही करना चाहिए जो उस समय करना ठीक हो। लेकिन कुछ और लोगों ने कहा कि राजा को बुद्धिमान व्यक्तियों की एक सभा की जरूरत है जो राजा को सही समय पर सही काम करने में सहायता करेगी। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कोई एक व्यक्ति दूसरे लोगों की सहायता के बिना सही समय पर सही फैसला नहीं कर सकता है। But then others said that there were some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magicians can do that. The king therefore would have to go to magicians. In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. Others said the priests, and few others chose the doctor, and yet others said that his soldiers were the most necessary. लेकिन तब कुछ दूसरे लोगों ने कहा कि कुछ ऐसी चीजें भी है जो बहुत जरूरी हो सकती है और ये चीजें सभा के फैसले का इंतजार नहीं कर सकती। तो कुछ काम को करने के लिए सही समय का फैसला करने के लिए भविष्य की जानकारी होना बहुत जरूरी है और भविष्य की जानकारी केवल जादूगर ही दे सकते हैं, इसलिए राजा को जादूगर के पास जाना होगा। दूसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों का कहना था कि राजा के लिए सबसे जरूरी है वो उनके मंत्री हैं और कुछ लोगों का कहना था कि पुजारी जो पूजा पाठ करते हैं वो लोग जरूरी है। कुछ लोगों ने डॉक्टर को चुना और लास्ट में कुछ लोगों ने कहा कि जो उनके सिपाही है, जो सोल्जर्स है, वो राजा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। To the third question, some said science, others choose fighting, and yet others religious worship, as the answer to his question were so different. The king was not satisfied and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit, who was widely known for his wisdom. The hermit lived in a wood which he never left. He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes before he reached the hermit's hut. The king left his horse with his bodyguard and went on alone. तीसरे प्रश्न के जवाब में कुछ लोगों ने विज्ञान को चुना, कुछ लोगों ने युद्ध को चुना और कुछ लोगों ने धार्मिक पूजा को चुना। अलग अलग जवाब आ रहे थे, इस वजह से राजा किसी के भी जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और उसने किसी को भी इनाम नहीं दिया। इसकी बजाय उसने एक साधु से मिलने का फैसला किया जो अपनी बुद्धि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। जो साधु था वह जंगल में रहता था और उसने जंगल कभी नहीं छोड़ा था और उसने साधारण लोगों के अलावा किसी को नहीं देखा था। इसलिए राजा ने साधारण कपड़े पहने
और इससे पहले कि वह साधु की कुटिया तक पहुंचता, उसने अपने घोड़े को अपने जो बॉडीगार्ड थे उनको दिया और वह अकेला साधु की कुटिया की तरफ चल दिया। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? जैसे ही राजा साधु की कुटिया के पास आया तो उसने देखा कि जो साधु था वह अपनी कुटिया के सामने मैदान खोद रहा था। साधु ने राजा का स्वागत किया और वह जो अपना काम कर रहा था उसे वह करता रहा। साधु बहुत ही ज्यादा बूढ़ा था और कमजोर था और वह उस समय काम कर रहा था, इसलिए वह जोर जोर से हाँफ भी रहा था। फिर राजा साधु के पास गया और कहा, बुद्धिमान साधु, मैं आपके पास अपने 3 प्रश्नों का जवाब लेने आया हूँ। पहला, मैं सही काम को सही समय पर कैसे करना सीख सकता हूँ, और दूसरा, किन लोगों की मुझे सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, और तीसरा, कौन से मामले मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। The hermit listened to the king but didn't speak. He went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. Thanks, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade, and said, Now you rest and let me work. साधु ने राजा की बात तो सुनी लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया और अपना काम करता रहा। फिर राजा ने कहा कि आप थक गए होंगे, आप मुझे अपना फावड़ा दो और अपनी जगह पर मुझे काम करने दो। फिर साधु ने उनको धन्यवाद देते हुए अपना जो फावड़ा था उनको दिया और वह जमीन पर जाकर बैठ गया। जब राजा ने 2 क्यारियां खोद ली तो वह रुका और अपने प्रश्न दोबारा से साधु से पूछे, लेकिन साधु ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया और वह खड़ा हुआ और राजा से बोला कि लाओ मुझे फावड़ा दे दो, अब आप आराम करो और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड and continued to dig. 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home. Here comes someone running, said the hermit. लेकिन राजा ने साधु को फावड़ा नहीं दिया और वह लगातार क्यारियां खोदता रहा। 1 घंटा बीत गया और ऐसे ही और घंटे बीतते गए। जो सूरज था वो पेड़ों के पीछे चले गया था। लास्ट में क्या हुआ, राजा ने अब फावड़े को गाड़ दिया और कहा, बुद्धिमान व्यक्ति, मैं तुम्हारे पास अपने सवालों का जवाब लेने आया था। अगर तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है तो आप मुझे बता दो ताकि मैं अपने घर लौट जाऊं। तभी साधु कहता है, कोई व्यक्ति यहाँ दौड़ता हुआ आ रहा है। सो स्टूडेंट, इस स्टोरी का पार्ट 1 यहाँ फिनिश होता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी यहाँ तक समझ में आ गई होगी। इस स्टोरी के बारे में आगे जानने के लिए आपको देखना होगा पार्ट 2।